हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कलाम। कलाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेलकम बैक टू आवर माइंड मैप सीरीज। 10 मिनट में हम सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझने वाले हैं। एंड टुडे आई थॉट व्हाई नॉट पिक अप यूपीएससी's फेवरेट टॉपिक, दैट इज इंडस वैली civilization. So here we are in our mind map series of 10 minutes, complete notes of Indus Valley civilization with simple visualization. When we talk about Indus Valley civilization, we know that it was the first major civilization in all of South Asia. साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो ये पहली मेजर सिविलाइजेशन रही है। नाउ हियर वी हैव इजिप्शियन सिविलाइजेशन ऑल्सो, वी हैव मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ऑल्सो, चाइनीज सिविलाइजेशन भी देखने को मिलती है। Indus Valley civilization, however, is very, very important. First of all, let us understand why Indus Valley civilization is also known as the Harappan civilization. क्यों बोला जाता है इसको Harappan civilization? Because the first site which was excavated as a part of this civilization by Dayaram Sahani in 1921 was Harappa, and that is why it is known as Harappan civilization. Indus Valley civilization was declared to the world by John Marshall in 1924, who was the Director General of ASI, the Archaeological Survey of India. यहाँ आप देखेंगे कि 1924 में जॉन मार्शल ने इस पूरे विश्व के सामने ये ऐलान किया था कि फाइनली हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर कर ली है। There are certain important points in the Indus Valley civilization which are repeatedly asked in your prelims examination and mains examination. For example, the town planning system of Indus Valley civilization, the grid system, इस तरीके से in a grid the roads were laid. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका घर यहाँ पर है, इस तरीके से सड़क होगी, और इस तरीके से आपका घर यहाँ है, so there would be roads laid like these. They would be cutting each other at 90-degree angle. So there was a grid kind of town planning. Burnt bricks पाई जाती थी, citadel पाया जाता था, drainage system, underground drainage system was there. burnt bricks से जो common houses थे, they were built of burnt bricks. तो citadel था, citadel was basically for the ruling class people, the priestly class, the business class, except of चाहनुदारो, चाहनुदारो को छोड़कर बाकी हर जगह आप देखोगे citadel भी पाया गया है। Now there is another important point. There are some of the Mesopotamian texts which have been found, which talk about the trading stations between Indus Valley civilization and Mesopotamian civilization. These two trading stations are Dilmun and Magan. तो यहाँ देखोगे मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच में दिलमून और मगन आपको दिखेगा। These were the trading stations, so that means we can very safely say कि there was trading link between Indus Valley civilization and Mesopotamian civilization. ट्रेडिंग स्टेशन जहां पर वो अपने स्टॉक को अनलोड या लोड करते होंगे वो भी यहाँ पर पाए गए हैं नियर अरेबियन सी एंड पर्शियन गल्फ। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वेरी इजीली क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन प्रीलिम्स इस टॉपिक के ऊपर। Another important aspect of the Indus Valley civilization is the location. अब आप देखोगे ये map, one by one we are going to study this map. For example, when we talk about Harappa, यहाँ पर आप देखोगे this is Harappa. When we talk about Harappa, it was excavated by Dayaram Sahani. It was the first site, so that is why they named the Indus Valley civilization as the Harappan civilization. Here we find the images, the small toys of bullock carts, which signifies कि उस टाइम पर बुलक कार्ट्स भी हुआ करते थे. These were the toys which have been excavated, which have been found. By just looking at this picture, मुझे काफ़ी आप बोल सकते हो अच्छा महसूस होता है. क्यों? क्योंकि उस टाइम पर भी टॉयज हुआ करते थे और इस तरीके से whatever we can see around us, we represent them through pictures, paintings, drawings and toys. राइट, जैसे किचन सेट होता है, डॉक्टर सेट होता है, ठीक है, ऐसे इस टाइम पर बच्चों के लिए ये खिलौने बनाए जाते थे. दैट इज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड. ओके, now next important aspect, this Harappa was situated on the banks of the river Ravi. There have been granaries which have been found, that means this wheat or other things were stored there. granaries भी पाई गई हैं, storage पाया गया है grains का.
Then the next important site, that is Banavali. Here you will see Banavali. Here we see the evidence of both pre-Harappan and Harappan culture. That means this is the site which witnessed different phases of Indus Valley civilization. कमिंग ऑन टू कालीबंगन, कालीबंगन की अगर बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइट। कालीबंगन बहुत इंपॉर्टेंट साइट रहा है, बिकॉज हियर यू विल फाइंड फायर ऑल्टर्स, यानी कि हवन कुंड जो होता है, ठीक है। देन कैमल बोन्स, दैट मीन्स कैमल्स वर प्रेजेंट। वुडन प्लाउ, प्लाउ भी था, एग्रीकल्चर वॉज देयर एंड वुडन प्लाउ वॉज यूज्ड। देन वी हैव मोहनजोदारो। जब मोहनजोदारो की बात आती है, मोहनजोदारो मीन्स माउंड ऑफ डेड, बिकॉज देर हैव बीन मेनी बरियल साइट्स विच हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। प्लस यहाँ पर पशुपतिनाथ महादेव का सील भी पाया गया है। दैट मीन्स लॉर्ड शिवा का थोड़ा सा एग्जिस्टेंस है। प्लस वी कैन सी दैट नेचर वॉज वर्शिप, प्लस मेडिटेशन वॉज देयर। ये इंसान ध्यान के मुद्रा में बैठा है। दिस मैन इज सिटिंग इन द posture of dhyan meditation, and the animals are इनडायरेक्टली दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स समवन हु इज एनलाइटेंड। अपने आप जो एनिमल्स हैं वो एक ऐसे इंसान की एनर्जी को जल्दी पकड़ते हैं जो इनलाइटेंड होता है। सो वी कैन फाइंड एनिमल्स दिस पर्टिकुलर पर्सन। सो वी कैन सेफली से ऐसा कहा भी जाता है दैट दिस इज लॉर्ड शिवा, पशुपतिनाथ। देन ब्रोंज डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर पाया गया है। ग्रेट बाथ पाया गया है। हेयर ग्रेट बाथ, इट वॉज यूज फॉर रिचुअलिस्टिक बेदिंग। यहाँ पर पानी भर दिया जाता था एंड दीज वर द स्टेयर्स यू हैड टू कम डाउन फॉर रिचुअलिस्टिक बेदिंग पर्पस। कोई बड़ा रिचुअल कंडक्ट हो रहा है, अपने आप को शुद्ध करना है, नहाना है, तो आप यहाँ ग्रेट बाथ में आया करते थे फॉर पीपल, for priestly class people or the business class people. So Mohenjo-daro was excavated by R.D. Banerjee in 1922. देन वी हैव ओवर हेयर चानूदारो। यहाँ पर आप देखोगे ये चानूदारो साइट है, जस्ट बिलो, डाउन बिलो मोहिंजोदारो, विच वॉज एक्सकवेटेड बाय एन जी मजूमदार। एन जी मजूमदार ऑल्सो एक्सकवेटेड अमरी। अमरी आप इधर देखोगे चानूदारो के पास ही है। अमरी को भी एन जी मंजूमदार ने एक्सकवेट किया है, एक्सप्लोर किया है, डिस्कवर किया है। हियर वी कैन फाइंड द एविडेंस ऑफ एंटीलोप्स। एंटीलोप नाम का एनिमल जो है वो भी यहाँ पर पाया जाता था। हिरण जैसा ही दिखता है, थोड़े उसके सींग डिफरेंट होते हैं। देन हियर आप यहाँ देखोगे कि व्हेन वी टॉक अबाउट चानूदारो वी हैव आल्सो फाउंड फुटप्रिंट्स ऑफ डॉग चेजिंग अ कैट। बिल्ली और कुत्ते के फुटप्रिंट्स भी पाए गए हैं। देन वी हैव अ वेरी फेमस साइट विच इज ढोलावीरा। ढोलावीरा की जब हम बात करते हैं, व्हाट हैव वी फाउंड हियर, द वाटर हार्नेसिंग सिस्टम हैज बीन फाउंड इन ढोलावीरा। वाटर reservoir has been found. That means people of Harappan civilization, they knew how to store things, they knew how to then use, harness those things. पानी को स्टोर किया जाता था, पानी को हार्नेस किया जाता था। तो इस तरीके से इस मैप में आप देखोगे एवरी इंपॉर्टेंट साइट हैड इट्स ओन रेलेवेंस। फॉर एग्जांपल सुरकोटड़ा में देखोगे घोड़ों की हड्डियां पाई गई हैं। दी हॉर्स बोन्स हैव बीन फाउंड इन सुरकोटड़ा। लोथल में आप देखोगे, लोथल में द फर्स्ट मैन मेड पोर्ट वॉज फाउंड, डॉकयार्ड वॉज फाउंड, फायर ऑल्टर्स भी पाए गए हैं, चेस गेम भी डिस्कवर की गई है। सो दिस इज वाई स्टडिंग ईच एंड एवरी लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए एक एक लोकेशन को पढ़ना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द टाउन प्लानिंग एंड एग्रीकल्चर। When we talk about town planning, यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है that the हरप्पा और the मोहिंजोदारो sites they had their own citadels. चानूदारो में सिटाडल्स नहीं थे, हरप्पा और मोहिंजोदारो में तो सिटाडल्स थे। एक्रोपोलिस और सिटाडल, दैट मीन्स places which were occupied by ruling class people. They were situated on high platforms. यहाँ पर buildings बनी हुई थी, तो यहाँ पर priestly class people, business people रहते थे, and they were separated by a wall. So the common people used to live near below the citadels, and every town, every city, every place had a grid, formation of roads. इस तरीके से ना ग्रिड फॉर्म में रोड्स हुआ करती थी। 90 डिग्री रोड्स एक दूसरे को कट किया करती थी। वी हैड ग्रेनरीज, बर्न्ट ब्रेक्स, और जो घर थे, कुछ घर जो थे, सम ऑफ द हाउसेज इन कालीबंगन दे हैड देयर ओन प्राइवेट वेल्स। So these are the systems which we can also see in medieval history. Medieval history में आप जब जाओगे ना, वहां पर भी आप इस तरीके के फीचर्स जरूर देखोगे टाउन प्लानिंग में। And coming to agriculture, we know that Harappan villages were situated near the flood plains, Ravi River. Indus River के आसपास जो cities थी, जो जगह थी, there we can see highest production of cotton.
मिलेट्स वर ग्रोन, पीज, व्हीट, सेसमे, बार्ले, राय, चिकपी जो आपके छोले होते हैं वाइट, लेंटिल, दाल जो होती है वो यहाँ पर ग्रो की जाती थी. देन कैनल्स हैव बीन फाउंड, कैनाल्स पाए गए हैं फॉर इरिगेशन सिस्टम. एंड एनिमल रियरिंग कैन ऑल्सो बी सीन, एनिमल रियरिंग भी की गई है यहाँ पर, एविडेंसेस हैव बीन देयर. सो दीज आर द important aspects of the Harappan civilization, or we can say the Indus Valley civilization. Now there are various reasons why the Indus Valley civilization declined. Reasons में ये भी आ जाता है कि because of the flooding it declined, some people say because of drought it declined. So अलग अलग reasons है, अलग अलग hypothetical theories हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि देखो यहाँ पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ वी ऑलरेडी हैड ट्रेड, सो वी वर ट्रेडिंग इन लैपिस lazuli. दिस काइंड ऑफ stone was known as lapis lazuli. एंड वी कैन सी दैट अरेबियन सी के कोस्ट में नेविगेशन भी हुई है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेडिंग पोस्ट भी स्टैब्लिश किए हैं, बार्टर सिस्टम वॉज देयर. दैट मीन्स कि यू आर गिविंग मी wheat, in exchange of wheat आई एम गिविंग यू मिल्क, यू नीड मिल्क फ्रॉम मी, आई नीड wheat, सो वील एक्सचेंज. वो बार्टर सिस्टम हो जाएगा जहाँ करेंसी यूज नहीं होती है, जहाँ प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट दिया जाता है, ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ गुड्स, दैट इज बार्टर सिस्टम. सो दीज आर द थिंग्स. वेट्स एंड मेजर्स का इलेबोरेट सिस्टम था, किलोग्राम वगैरह जैसे वेट्स आप अभी देखते हो उस तरीके का सिस्टम हरप्पन सिविलाइजेशन में भी स्टैब्लिश था. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रिलीजन, वी कैन सी नेचर वाज वर्शिप. हमेशा याद रखना हरप्पन सिविलाइजेशन में नेचर वर्शिप हुआ है. एनिमल को आप देखोगे, ट्रीज एंड एनिमल्स को वर्शिप किया जा रहा है. वी हैव फर्टिलिटी गॉडेस दैट रिप्रेजेंट्स गॉडेस अर्थ. Here this is the sculpture of fertility goddess. You can see that the plants are growing from her navel area. तो यहाँ पर आप देखोगे फर्टिलिटी गॉडेस है कि भाई ये बर्थ दे रही है, शी इज गिविंग बर्थ. phallus and female sex organs have been found which are made up of stone. then you can see पशुपतिनाथ, मदर गॉडेस की इमेज यहाँ पर पाई गई है. ठीक है, वी कैन सी द टेराकोटा फिगरिन्स ऑफ विमेन विद हेड गियर्स, प्रोमिनेंट हेड गियर्स पहने हुए हैं. सो यू कैन सी कि डिवाइन फिगरीन्स ऑफ मदर गॉडेस हैव बीन फाउंड ओवर हियर विच वर वर्शिप्ड. तो कोई टेम्पल नहीं था, देयर वाज नो टेम्पल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट नेचर वाज वर्शिप, नेचर की काफी पूजा की जाती थी. सो दिस वॉज योर इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये था आपका आज का सेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन का. आई होप इन 10 to 11 minutes आई हैव समराइज्ड इट प्रिटी वेल. सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग, बट आपको थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा. ऐसे कैसे आप जा सकते हो विदाउट इवन लुकिंग एट कलाम? कलाम के साथ हमने इंटरेक्शन आज का तो किया नहीं. सो लेट अस आस्क कलाम टू गिव अस few questions to solve on Indus Valley civilization. For example, I'll ask, give me 4 MCQs on Indus Valley civilization. मुझे 4 MCQs चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, सो दैट आई कैन सॉल्व देम एंड देन आई विल गो टू स्लीप. एक बार मैं इसको सॉल्व कर लूँ फिर मैं सोने जाऊंगी. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू यूटिलाइज कलाम फॉर योर प्रिपरेशन. हमेशा याद रखना कि जब आप कोई चीज टॉपिक को पढ़ लेते हो उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद आप सोने जाएंगे, सो दैट theoretically what you have studied you can apply it practically also. You can test that you have retained it pretty well or not. आप ये टेस्ट कर सकते हो कि जो आपने पढ़ा उसको रिटेन किया है या नहीं, क्योंकि सिर्फ पढ़ना भी जरूरी नहीं है, पढ़े हुए को रिटेन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है. सो हियर कलाम इज गिविंग अस द फर्स्ट क्वेश्चन. Which of the following theories is not associated with the decline and disappearance of Indus Valley civilization? Decline in trade, yes, कि trade decline हो गया तो पैसा नहीं कमा पाया civilization and that is why it declined. Natural disasters, yes. Invasion by Aryans, yes, this is also one of the theories which has not been proven yet, but हाँ ये भी एक theory है कि Aryan invasion हुआ था. बट इन्वेजन बाय मंगोल्स ये हमने नहीं पढ़ा, तो इसको मार्क करते हैं. सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं. आई एम आंसरिंग दीज क्वेश्चंस एज एन एस्पिरेंट कि भाई मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं टेस्ट कर रही हूँ कि जो पढ़ा वो रिटेन हुआ या नहीं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रेड एंड इकोनॉमी ऑफ आईवीसी. आपको भी मार्क करना है नीचे कमेंट सेक्शन में. Indus Valley civilization had well-developed system of weighs and measures. Indus Valley civilization did not have any contact with Mesopotamian civilization. Main occupation of the people was agriculture and it did not have any knowledge of sea trade. अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो वेज एंड मेजर्स का तो अभी हमने पढ़ा है. हेयर आई शो यू ऑन स्क्रीन ऑल्सो, जहां पर हमने ये वेज एंड मेजर का सिस्टम पढ़ा है. सो हेयर यू हैव वेज एंड मेजर्स. ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में वेज और मेजर्स तो थे. दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट.
नाउ कमिंग ऑन टू सेकंड स्टेटमेंट, दे हैव नो कॉन्टैक्ट, ये तो गलत हो गया. वी हैव ट्रेडिंग पोर्ट्स सेट अप बिटवीन मेसोपोटामियन एंड आईवीसी, है ना. तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया. दैट मीन्स यू कैन सेफली इग्नोर बी स्टेटमेंट एंड डी, बी और डी ऑप्शन को हटा सकते हो. थर्ड स्टेटमेंट, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल वाज एग्रीकल्चर, यस वहां पर एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट था. थर्ड इज करेक्ट. दैट मीन्स 1 and 3 आर सो फार करेक्ट. Indus Valley civilization did not have any proper knowledge of sea trade, ये भी गलत है, because this is wrong, because we had established trade with Mesopotamian civilization. That means A, we'll mark A. Question 3 पे आते हैं. Consider the following statements and which statement is correct. Cities of IVC were well planned. Yes, हमने पढ़ा है grid like pattern था, well planned था. Great Bath of Mohenjo-daro is earliest known public water tank in ancient world. Horses in the cities of IVC were made of baked bricks. हाउसेस जो थे वो बेक्ड ब्रिक्स से पड़े थे के बने थे. अब देखो, बहुत ध्यान से देखना है, हमने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है. यानी कि आप जो पढ़ रहे हो वो प्रैक्टिकली कलाम के साथ, क्वेश्चंस के साथ आप टेस्ट भी कर सकते हो. थर्ड स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा, इट वुड बी रॉन्ग. थर्ड इज रॉन्ग. ए कैन बी इग्नोर्ड, सी ऑप्शन कैन बी इग्नोर्ड. Cities of Indus Valley civilization lacked any form of drainage system. That is also wrong. Just now we have studied there was a well planned underground drainage system. आपका थर्ड भी गलत हो गया, फोर्थ भी गलत हो गया. ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ बोथ आर रॉन्ग. दैट मीन्स यू कैन इग्नोर डी, सी एंड बी. एक को मार्क कर लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ज्योग्राफी ऑफ आईवीसी. IVC was primarily located in northwestern regions of South Asia. Major cities of IVC were located along the banks of Indus River. Indus Valley civilization extended into present-day northeast Afghanistan. Coastal cities of IVC were located along the Arabian Sea. Now, मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पर, एक रैंडम गेस मारती हूँ, ठीक है, एंड देन आई विल क्लिक ऑन सबमिट. नाउ यू कैन सी ऑल 4 क्वेश्चंस आर करेक्ट. सारे 4 क्वेश्चंस करेक्ट है. मेरे तो बल्ले बल्ले हो गई, आईवीसी मेरा प्रिपेयर्ड है. नाउ आई एम वेरी डैम श्योर आईवीसी टॉपिक इज एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड. ज्योग्राफिकल जो क्वेश्चन आया था, आई हैव एक्सप्लेन दैट ऑल्सो थ्रू दिस वेरी वंडरफुल एंड ब्यूटिफुली क्रिएटेड मैप. इस तरीके से जब आप तैयारी करते हो तो मजाल है किसी की कि आपसे कोई भी मार्क्स खींच सके. दिस इज हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस. देखो, मुझे मेरा ग्राफ भी मिल गया. फाइनली आई कैन डाउनलोड दिस, तो मेरे पास मेरे खुद के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ भी तैयार हो जाएगी. दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर. मैं बस आपको यही बताने की कोशिश करती हूँ कि प्रिपेयर करना स्मूथ और इजी प्रोसेस हो सकता है अगर आप सही स्ट्रैटेजी और सही गाइडेंस के साथ प्रिपेयर करें. Please wait for few more minutes. I would just wanted to inform you about a very important event that we are conducting at Kalam for all of you. I know UPSC CSE preparation journey is in itself a very challenging path, a path that you have to walk on with sacrifices that you make, sacrifices that you make for your own self, for the betterment of your own future. But these sacrifices also come with a pinch of distractions. Now I know that Karthik Katuru sir at Kalam, he had cleared 2017 UPSC examination. When we look at Dipanshu Singh sir, he has cleared mains twice, and he has been guiding several students who have cleared this exam in the past. He has been teaching students, mentoring them. He has been a part of G20 initiatives. He also is a public policy expert. Now he has an experience of last 8 to 9 years. When it comes to me, I have always shared this with all of our students, that I just want to make complex things simple for all of you. Now with all these, this intention of making this journey easy for you, simple for you, of making you understand what are the pitfalls and taking you out of it, making you understand what are the areas, the gray areas, which can lead you to distraction, and then pulling your hand out of it, pulling you out of those gray areas and distractions. This is the sole aim of all of us at Kalam. And that is why we are conducting a mega event, a mega session, to cater to all your doubts and to bring the important strategies, the tricks that you can follow to not just finish your syllabus before prelims, but also revise it twice before you actually sit for this exam. And this mega event is going to take place on 28th of September at 9 p.m. Now, how to be a part of this special event?
You just have to fill the form which is given below in the description box of this video and which is also pinned into the chat section. चैट सेक्शन में आप देखेंगे एक आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सेम फॉर्म का लिंक है। आपको बस ये फॉर्म फिल करना है और आपको एक स्पेशल इनवाइट लिंक दिया जाएगा जब ये सेशन कंडक्ट होगा। एंड उस इनवाइट लिंक को यूज करके आप हमसे वन ऑन वन लाइव इंटरैक्ट करके इस मेगा इवेंट का पार्ट बन सकते हैं। So, what are you waiting for? Just go through that link, click on it, and sign up. And do show up at 28 September 9 p.m. through the invite link that we'll be sending you once you finish filling the form. Let's meet at 28 September 9 p.m. We all will be waiting for you.